Good evening, student. After completing the interphase, now the cell can undergo two types of division, that is mitosis and meiosis. In this video, we are going to learn about mitosis. Mitosis is also called as equational cell division, in which one mother cell or the parental cell will get divided into two daughter cells. These two daughter cells are the exact copy of each other and they will have the same number of chromosomes just like the parental cell. So let's try to learn in detail about the mitosis. As we have discussed that mitosis is also called as equational cell division. This mitosis is discovered by Strasburger in plant cell, and in animal cell this is discovered by W. Fleming, and the term mitosis is also given by W. Fleming. So the process of mitosis is discovered by स्टार्सबर्गर ने माइटोसिस को डिस्कवर किया था इन प्लांट सेल, और इसी सेम प्रोसेस को डब्ल्यू फ्लेमिंग इन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इन एनिमल सेल. While the term mitosis is given by W. Fleming. ये जो टर्म है माइटोसिस की, ये W. फ्लेमिंग ने दी थी. माइटोसिस को हम इक्वेशनल सेल डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि माइटोसिस में जो मदर सेल है या तो फिर जो पैरेंटल सेल है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू डॉटर सेल्स. ये दो डॉटर सेल्स हैं. दीज डॉटर सेल्स आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर. Plus, these daughter cell will have the same number of chromosome compared to the parental cell. That means if the parental cell is a diploid cell and it is having 46 chromosome, then each daughter cell which got produced from the parental cell will also have the same number of chromosome, that is 46. Clear? And that's why the division of chromosome is equal in both the daughter cell. That's why the cell division is called as equational cell division. Now in our body, both the type of cells, that is somatic cell as well as germinal cells, are able to perform the mitosis. Mitosis is a cell division which is generally used for increasing the number of cells. So this division is useful for increasing the number of cells. The only purpose of mitosis is to increase the number. That's why both the type of cell in our body, that is somatic cell as well as germinal cell. Somatic means body cells. Okay, they can undergo mitosis to increase the number. This number increase is for growth or repair, for wear and tear. And germinal cell also can undergo mitosis to increase their number. So somatic as well as germinal cells are able to perform the division of mitosis. But generally in case of animals, diploid cells will undergo mitosis with few exceptions. These few exceptions are the parthenogenetically developed drone in case of honeybees. See, the drones of honeybees
are developed from unfertilized egg. This unfertilized egg is actually a haploid egg, and from that haploid egg, by the process of mitosis, the drones, that is the males of honeybee, will get developed. So this is one exception in which in animal the mitosis is performed by a haploid cell, but generally speaking अगर हम जनरल बात करें तो एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल जो है वो ही माइटोसिस करते हैं, लेकिन प्लांट्स में diploid as well as haploid cell can undergo mitosis. So in case of plants, both diploid and haploid cells can undergo mitosis. These diploid cells of plants are again somatic as well as germinal, and the haploid cells of plants are the gametes which will undergo the process of mitosis to produce gametophyte. This is a unique process, that is gametophyte development is a unique process which takes place in case of plant. This process is absent in case of animals. So generally we speak in animals the diploid cell generally perform mitosis with few exceptions, but in plant diploid as well as haploid cell can perform the process of mitosis. Now whatever cell wants to undergo the process of mitosis, firstly the cell have to complete the interphase. So a cell which is undergoing mitosis will first complete a interphase. So ये जो सेल है जिसे अभी माइटोसिस करना है, इसे सबसे पहले जो सेल साइकिल की स्टेज कंप्लीट करनी पड़ेगी. लेट्स से फॉर एग्जांपल कि यहाँ हमारा सेल माइटोसिस करेगा. सो माइटोसिस करने से पहले सेल को ये इंटरफेज कंप्लीट करनी पड़ेगी, जिसमें सेल को G1 फेज कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर S फेज और फिर G2 फेज कंप्लीट करनी पड़ेगी. आफ्टर कंप्लीटिंग G2 फेज द सेल विल एंटर अ फेज ऑफ डिवीजन, दैट इज M फेज. अब जैसे ही सेल M फेज में आएगा, सेल को फिर से दो डिवीजन करनी पड़ेगी. सेल को अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ेगा और सेल को साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना पड़ेगा. सो यहां आके भी सेल को दो डिविजन्स करनी पड़ेगी. एक है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी है साइटोकाइनेसिस. लेकिन कैरियोकाइनेसिस में सेल को 4 फेजेस में से जाना पड़ेगा. वो 4 फेजेस होगी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase, and after completing the telophase the cell will enter into cytokinesis. Clear for this thing? So माइटोसिस की जो पहली स्टेज होंगी वो होंगी प्रोफेज, दूसरी स्टेज होंगी मेटाफेज, तीसरी स्टेज होगी एनाफेज और चौथी फेज होगी टीलोफेज. जैसे ही टीलोफेज खत्म होती है सेल कैरियोकाइनेसिस खत्म कर लेगा, यानी उसके न्यूक्लियस के 2 हिस्से हो जाएंगे. उसके बाद सेल को साइटोप्लाज्म डिवाइड करना पड़ेगा और उस प्रोसेस को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. सो लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल. So as we have discussed, the cell which is undergoing the mitosis will first complete the interphase. So a cell which is undergoing a process of mitosis will first enter into G1 phase, then it will enter into S phase, then it will enter into G2 phase. Here it will complete its interphase. After completing the interphase, the cell will undergo a process of karyokinesis. This karyokinesis will get further divided into 4 stages. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि सेल डिवीजन ये एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और जितनी भी सब फेजेस में हमने कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस को डिवाइड किया है वो मैंडेटरी नहीं है. इट इज बाय कन्वेंशन दैट वी आर डिवाइडिंग दिस कैरियोकाइनेसिस इनटू 4 सब स्टेजेस. हमने हमारे सहूलियत के लिए ये कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस को 4
अलग अलग सब फेजेस में डिवाइड किया है। इन 4 अलग अलग स्टेजेस की कोई भी फिक्स बाउंड्री नहीं है, लेकिन हम ये कन्वेंशनली मान के चलते हैं कि ये एक पर्टिकुलर इवेंट खत्म हुआ तो एक स्टेज खत्म हुई, और ये एक पर्टिकुलर इवेंट चालू हुआ तो दूसरी स्टेज चालू हुई। एज हमने एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस को 4 फेजेस में डिवाइड कर लिया है, इसीलिए ये चारों स्टेजेस जो है वो एक सीक्वेंशियल मैनर में होगी, यानी जिस स्टेप पे एक स्टेज खत्म हो रही है उसी पॉइंट से दूसरी स्टेज चालू हो जाएगी। सो दिस कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू प्रोफेज, after completing prophase the cell will enter into metaphase, मेटाफेज के बाद द सेल विल एंटर इनटू एनाफेज, और एनाफेज खत्म करके सेल जाएगा टीलोफेज में, और टीलोफेज खत्म हो जाएगी तो कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाए। अब ये कैरियोकाइनेसिस की ये सारी जो स्टेजेस है वो कन्वेंशनली हमने डिसाइड की है, और ये सारी स्टेजेस एक के बाद एक होगी, यानी ये सीरियली होगी। जहां प्रोफेज खत्म होगी उसी पॉइंट पे मेटाफेज चालू होगी, और जहां मेटाफेज खत्म होगा उसी पॉइंट पे अपना चालू हो जाएगा। तो ये स्टेज जो है वो कन्वेंशनली हमने डिजाइन की है, इनकी कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन जो भी इवेंट स्पेसिफिकली हम ध्यान में रखेंगे वो स्टेज के हिसाब से ही ध्यान में रखेंगे। हमें प्रो फेज में कौन से इवेंट है वो ध्यान में रखना है, मेटा फेज में कौन से इवेंट होंगे वो ध्यान में रखना है। सिमिलरली फॉर एनाफेज एंड टीलोफेज, जैसे ही टीलोफेज खत्म होती है कैरियोकाइनेसिस खत्म हो जाएगा एंड द सेल टीलोफेज के बाद एंटर हो जाएगा इनटू प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। ये जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस है वो भी 2 टाइप से हो सकती है। प्लांट में ये अलग तरीके से होगी और एनिमल सेल में ये अलग तरीके से होगी। प्लांट में सेंट्रल प्लेट फॉर्मेशन से होगा साइटोकाइनेसिस, और एनिमल में सेंट्रल नॉच फॉर्मेशन से होगा साइटोकाइनेसिस। इसके बारे में हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में बात करने ही वाले हैं। सो लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप इन डिटेल। वी विल स्टार्ट विद द प्रोफेज, बट बिफोर दैट वो सेल जिसने अभी इंटरफेज खत्म किया है वो कैसा दिखेगा ये जानना भी बहुत जरूरी है। सो एक सेल है जिसने जस्ट अभी इंटरफेज खत्म किया है, इसका मतलब है कि उसने अभी G1, S और G2 फेजेस कंप्लीट कर ली है। सेल का साइटोप्लाज्म डबल हो चुका है, सेल का क्रोमोसोम कंटेंट डबल हो चुका है, लेकिन सेल का नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये सेम है। Okay, so this cell which has just completed the interphase, actually this cell is having chromosome content of 4C and chromosome number of 2C, will have this nucleus, and inside the nucleus we can visualize the chromatin network, which are actually the chromosomes which are tangled amongst each other। ये सारे के सारे क्रोमेटिन फाइबर है जो एक मेक में के अंदर टैंगल फॉर्म में प्रेजेंट है। ये अलग अलग क्रोमोसोम हमें सेपरेटली नहीं दिखते आफ्टर इंटरफेज। प्लस ये सेल ने इंटरफेज कंप्लीट कर ली है, ये हमें इस पे से भी पता चलता है कि इस सेल के पास एक के जगह पे 2 सेंट्रियोल्स होंगे। सो इफ द सेल इज हैविंग 2 सेंट्रियोल, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सेल हैज ऑलरेडी कंप्लीटेड द इंटरफेज। क्लियर फॉर दिस थिंग। और सेल की साइज भी बड़ी हो चुकी होगी और उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी बढ़ गया होगा और सेल ऑर्गेनेल्स का नंबर भी डबल हो चुका होगा। सो दिस पर्टिकुलर सेल हैज जस्ट कंप्लीटेड द इंटरफेज और ये अब जाएगा पहली स्टेज में, दैट इज प्रोफेज। सो लेट्स ट्राई टू लर्न अबाउट द प्रोफेज इन डिटेल।